New topic is complex numbers. Now we consider this quadratic equation: x square minus 5x plus 6 equal to 0. 6 के फैक्टर्स -2 -3, फैक्टर्स ऑफ 6 -2 -3, इसके फैक्टर्स आएंगे x -2 x -3 equal to 0. Either x -2 equal to 0 means x equal to 2 or x -3 equal to 0 means x equal to 3. These are the roots of this equation. 2 and 3 are real numbers. The roots of this equation are real roots. Real roots. If we put x equal to 2, the equation gets satisfied. x equal to 2 रखने के बाद में आंसर आता है 0. x equal to 3 रखे तो भी आंसर आएंगे 0. 3 square 9 minus 5 into 3 15 plus 6 9 plus 6 15 minus 15 equal to 0. So these roots x equal to 2 x equal to 3 are real numbers, that means real roots. Now consider another equation x square plus 1 equal to 0. अब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इफ वी पुट x इक्वल टू 1 then 1 square plus 1 it is not equal to 0. 1 square plus 1 is 1 1 plus 1 2 2 is not equal to 0. x equal to -1 रखे तो -1 का स्क्वायर plus 1 it is not equal to 0 because -1 square means 1 1 plus 1 again 2 2 is not equal to 0. So there is no real number which satisfy this equation. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी रियल नंबर नहीं है. दैट मीन्स द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी. इसलिए नंबर का कंसेप्ट आ गया इमेजिनरी नंबर्स. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1. So this under root of -1 is called as imaginary number, imaginary unit, and it is denoted by I. Under root of -1 is denoted by I, and I called as iota, I-O-T-A, iota. So we write x equal to plus minus I. What is the value of I? I equal to under root of -1. I square equal to -1. I equal to under root of -1. I square equal to -1. Under root of -1 का स्क्वायर -1. I का स्क्वायर I square. So I square equal to -1. I square equal to -1 means I equal to under root of -1. Under root of -1 it is denoted by I. X equal to plus minus I. यहाँ पे दोनों रूट्स है, एक I और सेकंड माइनस I. Both the roots are imaginary roots. यहाँ पे डेफिनेशन देंगे अपन. A number of the form bi. b real number है, 2i 3i -3i -1/2i -3/2i. b belongs to R, यानी b real number है. b is not equal to 0. And what is I? I is under root of -1 is called imaginary number. इसमें I is called as iota. इसको हम लोग पढ़ते b into iota या b into I. I means imaginary unit. bi imaginary number हो गए. एग्जाम्पल में देखेंगे अंडर रूट ऑफ -36. अंडर रूट ऑफ -36 मीन्स रूट अंडर रूट ऑफ -36, that means root -1 into root 36. Root -1 means I. Root 36 means 6. I into 6, that is equal to 6i. 6i under root of -36. Second 3i -4/9i. These are the imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर की प्रॉपर्टीज है. इमेजिनरी नंबर है I को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 0. I satisfies following properties. I into 0 equal to 0. If I multiply any number any imaginary number by 0, we get the answer 0. सेकंड है कि if a is any real number, अंडर रूट ऑफ -i स्क्वायर, जैसे ये अंडर रूट ऑफ -36, अंडर रूट ऑफ -a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ -a स्क्वायर मीन्स -1 into a स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ -1 है i स्क्वायर into a स्क्वायर.
under root of I square means I, under root of A square means A, that is equal to AI. IA into AI, that is same thing, I into A. थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि दोनों रियल नंबर्स है A और B, AI इक्वल टू BI, दो नंबर्स है, दो इमेज नंबर्स इक्वल है, A into I इक्वल टू B into I, then A equal to B. A and B are always equal. A equal to B. This I is equal to under root of -1. यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है, I equal to under root of -1 और I square equal to -1. I is called as imaginary unit. I is iota and the number BI, number of the form BI, where B is any real number, that is imaginary number. बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, दो रियल नंबर्स है ए और बी, ए और बी रियल नंबर्स है, नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी और नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आई, आई इंटू बी लिख सकते हैं, बी इंटू आई भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आई और ए प्लस आई बी इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. Complex number, and complex number is denoted by Z. Complex number A plus IB is denoted by Z. We write Z equal to A plus IB. यहाँ पे याद रखना है कि A और B दोनों रियल नंबर्स है. A B belongs to R. और what is I? I equal to under root of -1 iota. I means iota. It is equal to under root of -1. And number of the type A plus IB or A plus BI, where A and B are real numbers and I equal to under root of -1 is called a complex number. Complex number है A plus IB, इसमें A is called as real part of complex number. A is called as real part, B is called as imaginary part. I का coefficient, the coefficient of I, multiple of I, that is called as imaginary part. A is called real part and B is called imaginary part of complex number A plus IB. A real part, B imaginary part of complex number A plus IB. Complex number है 2 plus 3i. इसमें real part है 2, imaginary part है plus 3 यानी 3. Complex number है 4 minus 5i. रियल पार्ट इज 4, इमेजिनरी पार्ट इज -5, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -5 है. कॉम्प्लेक्स नंबर है 4i, 4i मीन्स 0 plus 4i. यहाँ पे रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है 4. कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, 2 कैन बी रिटन एज 2 plus 0 into i. रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 0. रियल पार्ट 0 भी रह सकता, imaginary part may be 0. The coefficient of I is imaginary part or not containing I, that is the real part of complex number Z. इसमें याद रखना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों रहेंगे रियल नंबर्स. जो डेफिनेशन में लिखा अपन है, where A B are real numbers, A and B are real part, imaginary parts, so they are real numbers. The complex number is denoted by Z. And Z equal to A plus IB. Real part of A is called as the real part of Z, and the real part of Z is denoted by REZ or RZ. B is imaginary part of complex number Z. The imaginary part is denoted by IMZ or IZ. IZ या IMZ, that is imaginary part of Z, where real part is denoted by RAZ or RZ, imaginary part is denoted by IMZ or IZ, and therefore real part of Z, that means RZ, that is equal to A. Imaginary part of Z means IZ, it is equal to B. Next topic है इसमें, पहले तो एग्जांपल्स. Z equal to 2 plus 3i is a complex number. Then real part of Z equal to 2, imaginary part of Z equal to 3. A complex number whose real part is 0
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। a इक्वल टू रियल पार्ट 0 लेंगे, रियल पार्ट 0 मीन्स 0 प्लस आई बी, यहाँ पे रियल पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 if z इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो it is equal to ib, ib means purely imaginary, and if real part is 0 then the complex number is purely imaginary number not containing real part. Such a complex number is of the form z equal to 0 plus ib, यानी ib वो फॉर्म निकाला हमने। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ पे b इक्वल टू 0 है, इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन z इक्वल टू a इज प्योरली रियल, it is purely real. A complex number whose imaginary part is 0, imaginary part is 0 and b equal to 0, the complex number is purely a real number, it is a real number, z equal to a, यहाँ पे b equal to 0 हो गया है, z equal to a is a real number means complex number is real, z equal to a plus 0 I, यहाँ पे b equal to 0 हो गया, that is equal to a real number। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके दोनों भी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों भी 0 है, 0 प्लस i इंटू 0, 0 प्लस i इंटू 0 मीन्स 0, 0 प्लस 0 मीन्स 0, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 i, 0 में रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, complex number 0, that means the real part is 0 as well as the imaginary part is 0. The set of complex numbers is denoted by C, the set of natural numbers is denoted by N, set of whole numbers is denoted by W, set of real numbers is R, set of integers means Z or I, तो ऐसा set of rational numbers है Q, तो set of complex numbers is denoted by C. The real part and imaginary part cannot be combined. जैसे complex number है 2 plus 5i, दो टर्म है, इसको सिंगल टर्म में नहीं लिख सकते, we cannot write as 2 plus 5 is 7i नहीं लिख सकते, this is not equal, यानी 2 plus 5i cannot be combined, cannot be written as 7i, 5 plus 2i cannot be written as 3i. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स इक्वल है a इक्वल टू c, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है b इक्वल टू d, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है a प्लस आई बी और सेकंड c प्लस आई डी, दोनों का रियल पार्ट इक्वल है a इक्वल टू c, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है b इक्वल टू d, then we say that two complex numbers are equal and we write a plus ib equal to c plus id. यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इसका मतलब दोनों के रियल पार्ट इक्वल, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल, a plus ib equal to c plus id, that means a equal to c, d equal to d. कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus iy equal to 2 plus 3i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल, दैट मींस वी राइट x इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट है y, इमेजिनरी पार्ट है 3, तो y इक्वल टू 3, वी राइट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक z1 इक्वल टू a प्लस बी आई, सेकंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी. अब ये i पहले या बाद में लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, are said to be equal if their corresponding real and imaginary parts equal. Their corresponding real and imaginary parts equal means their real parts are equal. A real part है, C real part है, A equal to C. Imaginary part है B, imaginary part है D, तो B equal to D. Real part equal, imaginary part equal.
two complex numbers a plus ib and c plus id are said to be equal if a equal to c, and b equal to d. a equal to c, b equal to d. a plus ib equal to c plus id if a equal to c, b equal to d. इसके बाद में का पार्ट है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, a1 प्लस ib1। सेकंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोनों की सम इट इज डिनोटेड बाय z1 प्लस z2, z1 और z2 के एडिशन z1 प्लस z2, and it is defined as z1 plus z2 equal to z1 यानी a1 plus ib1, a2 plus ib2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते वक्त दोनों के रियल पार्ट्स ऐड करना है। यानी फर्स्ट ब्रैकेट आएगा a1 plus a2 प्लस सेकंड ib1 plus ib2 में से i कॉमन b1 plus b2, a1 plus a2 i कॉमन यानी b1 plus b2। रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2, z1 plus z2 का रियल पार्ट है a1 plus a2, a1 यानी रियल पार्ट ऑफ z1, a2 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z2। एंड इसके ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 plus z2, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सो z plus 1 z2 इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद में टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद एक एग्जांपल है, एक 3 माइनस 7 है प्लस 5 प्लस 3 है। इसमें रियल पार्ट है 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया, -7i प्लस 3i, i कॉमन ब्रैकेट में -7 प्लस 3 प्लस 5 मीन्स 8 प्लस -7 plus 3 means -2i, and it is equal to, we can write 8 minus 4i, -7 plus 3 that is -4i। यहाँ पे -2 plus 3, ये -2 plus 3, i कॉमन है तो ब्रैकेट में 5 -7, 5 -7, -2 plus 3 means 1, 5 minus 7 -2, तो -2i। You get addition of two complex numbers 1 minus 2i। Properties of addition। Three complex numbers है z1, z2, z3। These are the three complex numbers। तो z1 plus z2 और z2 plus z1 it is same, commutative law। Associative law भी true है। z1 में z2 plus z3 ऐड करना या z1 plus z2 एडिशन में z3 ऐड करना है, इट इज सेम, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। z1 में 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किए यानी 0 ऐड किए, 0 में z1 ऐड किए, आंसर आता है z1, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ 0, आइडेंटिटी एलिमेंट। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, सेकंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2। अपने निकालना है z1 माइनस z2, z1 मीन्स a1 प्लस ib1 माइनस a2 प्लस ib2। You get a1 प्लस ib1 माइनस a2 माइनस ib2, a1 माइनस a2 फर्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ से i कॉमन ले लिए दोनों टर्म में से, ये दो टर्म में से i कॉमन दिया तो b1 माइनस b2, यानी z1 माइनस z2 सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स is defined as z1 minus z2 equal to a1 plus ib1 minus a2 plus ib2, it is equal to a1 minus a2 फर्स्ट ब्रैकेट, a1 minus a2 प्लस i कॉमन तो ब्रैकेट में b1 minus b2, b1 minus b2। z1 minus z2 it is also a complex number। एग्जांपल है 4 plus i minus of 2 minus 3i, इसमें 4 रियल पार्ट माइनस 2, 4 माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, i का कोएफिशिएंट है 1, बाद में माइनस साइन, i का कोएफिशिएंट है -3, 1
minus 3 and then 1 plus 3 into I, it is equal to 2 plus 4I, it is equal to 2 plus 4I. Second, 5 plus 13I minus 4 plus 7I, 5 minus 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, 13 minus 7 सेकंड ब्रैकेट में into I, 5 minus 4 means 1, 13 minus 7 means 6, यानी 1 plus 6I, you have subtraction of this 2. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एक सब्ट्रैक्शन के बाद में थर्ड नंबर हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन. कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी. स्केलर है k, रियल नंबर है, k से मल्टीप्लाई किया z को, k इंटू जेड, तो k इंटू a प्लस आई बी, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स a प्लस i इंटू k टाइम्स b. इन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को k से मल्टीप्लाई करना है. If z equal to a plus ib is any complex number, and for every real number k, we define kz. Kz means k into a plus I into k into b. यानी kz निकालना रहा तो दोनों टर्म रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को k से मल्टीप्लाई करेंगे, we get k times z. इसका एग्जांपल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 7 प्लस 3 है, देन 5z means 5 into 7 plus 3i minus 7 plus 3i, 5 into 7 35 plus 5 into 3 15 plus 15i, 5 into 7 35 plus 5 into 3 15i. You have multiplication. z1 equal to 3 minus 4i, z2 equal to 10 minus 9i, then 2z1 minus 5z2 निकालना है, तो ये z1 को 2 से मल्टीप्लिकेशन प्लस z2 को 5 से मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 6 माइनस 8i प्लस 50 माइनस 45i, 6 प्लस 50 56 माइनस 8 माइनस 45 माइनस 53, तो माइनस 53i. दिस इज 5z1 प्लस 5z2. 0 इंटू जेड, 0 रियल नंबर है, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किए, प्रॉपर्टी पीछे बताया मैंने, तो आंसर आता है 0. 0 प्लस 0i, दैट मींस 0. इफ वी मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 0, वी गेट आंसर 0. इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1, सेकंड z2 equal to a2 plus ib2. The product z1 into z2, multiplication of two complex number, it is defined as z1 into z2. z1 means a1 plus ib1, z2 means a2 plus ib2. यहाँ पे पहले a1 into a2, बाद में प्लस a1 into ib2 plus ib1 into a2 plus I into I square b1 b2. ऐसे चार टर्म आएंगे मल्टीप्लिकेशन में. z1 into z2 इक्वल टू a1 plus ib1 into a2 plus ib2. इट इज इक्वल टू पहली टर्म a1 into a2 फर्स्ट टर्म प्लस a1 into ib2, I कॉमन, I into a1 b2. इसके बाद में ये मल्टीप्लिकेशन, ये दो मल्टीप्लिकेशन हो गए, बाद में i b1 into a2 मींस I into b1 a2, I into I स्क्वायर b1 into b2. I स्क्वायर की वैल्यू है -1, a1 a2 प्लस यहाँ दोनों टर्म में से I कॉमन, a1 b2 प्लस b1 a2 -1 into b1 b2 मींस माइनस b1 b2, I स्क्वायर इक्वल टू -1. ये दोनों एक ब्रैकेट में ले लेंगे, विच इज रियल पार्ट. सो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस I इंटू a1 b2 प्लस b1 a2. एंड दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मल्टीप्लाई करना रहा तो a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2, ये हो गया रियल पार्ट.
a1 into b2 plus b1 into a2 into I. This is imaginary part. Thus the product z1 into z2, z1 into z2, it is a complex number. Example, 1 plus I into 2 minus 3I. 1 into 2. 1 into 2 is 2. 1 into minus 3I, then minus 3I. I into 2, that is 2I. और I into minus 3I, and minus 3I square. ये हो गया plus 2I minus 3I. This is minus I, and 2 minus I और minus 3 into I square के लिए minus 1. Minus 3 into minus 1, that is plus 3. So 2 plus 3, 5 minus I. That is the multiplication. Two plus I into 2 minus I. A plus B into A minus B का फॉर्मूला 2 square minus I square. 2 square minus I square. I square के लिए minus 1. And then 4 minus minus 1. And then 4 plus 1. That is 5. Properties of multiplication. जैसे addition के properties देखे वैसे multiplication. Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1. Commutative law. बने associative law. Z1 into Z2 into Z3 equal to Z1 into Z2 into Z3. This is associative law. Z1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी एलिमेंट. Z1 into 1 it is equal to 1 into Z1 equal to Z1. This is identity. इसके बाद में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इट इज इक्वल टू a प्लस आई बी. इमेजिनरी पार्ट है प्लस बी. इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है. देन द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी. इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज डिनोटेड बाय z बार. ये जो बार नोटेशन है दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. Z equal to a plus ib, then a minus ib is called conjugate of complex number z. It is denoted by z bar. 2 plus 3i जो complex number है, तो 2 minus 3i ये होगा conjugate of complex number 2 plus 3i. This is say z, तो ये होगा z bar. complex number है 4 minus 5i, इसका conjugate 4 plus 5i. इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है. इमेजिनरी पार्ट प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस. a plus ib is a complex number, then a minus ib is conjugate complex number of a plus ib. If z equal to a plus ib, then the conjugate is denoted by z bar. जो मैंने आपको बताया z bar, it is denoted by z bar. Z bar equal to a minus ib is 3 plus 2i. इसका conjugate 3 minus 2i प्लस 2 है तो साइन चेंज. माइनस रूट 5 है, माइनस रूट 5 का प्लस रूट 5 करेंगे, कॉन्जुगेट आ गया. आई का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे साइन चेंज माइनस 2i माइनस 3. ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2i माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 3 माइनस 2i. कॉन्जुगेट नंबर. कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे प्लस आई साइन थीटा है तो माइनस आई साइन थीटा देना है. cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ये क्या कॉन्जुगेट. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट है एक z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट z बार a माइनस आई बी. फिर से इसका कॉन्जुगेट लेते हैं z बार और उसका और कॉन्जुगेट. तो a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट है a प्लस आई बी, और a प्लस आई बी इट इज इक्वल टू z, यानी z बार होल बार इक्वल टू z. कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और उसका डबल कॉन्जुगेट लिए, आंसर आता है z. और z प्लस z बार इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z. ये z और z बार दोनों के एडिशन किए तो ib और माइनस ib कैंसिल, वी गेट ट्वाइस a. z प्लस z बार इक्वल टू ट्वाइस a. a मीन्स रियल पार्ट ऑफ z, ट्वाइस a. Twice a, and what is a? Real part of z. And twice real part of z. Z minus z bar. Z equal to a plus ib.
z bar इक्वल टू a माइनस आई बी, z माइनस z बार इक्वल टू a माइनस a कैंसल, आई बी माइनस माइनस प्लस आई बी यानी ट्वाइस आई बी, यू गेट ट्वाइस b into I, यानी ट्वाइस imaginary part into I, twice I imaginary part, twice I, b means imaginary part. ये फॉर्मूले नाम करना है. बाद में z इक्वल टू z बार है, z इक्वल टू z बार, z मीन्स a प्लस आई बी इक्वल टू a माइनस आई बी, a कैंसल, माइनस आई बी ट्रांसफर किए तो आई बी प्लस आई बी ट्वाइस आई बी इक्वल टू जीरो, ट्वाइस आई बी इक्वल टू जीरो मीन्स बी इक्वल टू जीरो, यानी इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो मीन्स बी इक्वल टू जीरो आ गए, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो रहा यहाँ पे, तो z इक्वल टू कितना था, z इक्वल टू a प्लस आई इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू a मीन्स प्योरली रियल. If z equal to z bar, z is purely real. Suppose z is not equal to 0, then z plus z bar it is equal to 0. इसके ऊपर से कंडीशन आएंगे, z plus z bar equal to 0. z means a plus ib plus a minus ib equal to 0. You cancel. Twice a equal to 0. Twice a equal to 0 means a equal to 0. यदि रियल पार्ट जीरो आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी. दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन है और उसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग लेके एडिशन कर सकते हैं. कॉन्जुगेट ऑफ z1 plus z2 इट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 plus कॉन्जुगेट ऑफ z2. सो ऐसे सब्ट्रैक्शन, कॉन्जुगेट ऑफ z1 minus z2 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2. सिमिलर रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट. ऐसे कितने भी मल्टीपल में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हर एक के लिए रूल एप्लीकेबल है. z1 इंटू z2 द सेम रूल, z1 बार z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट है, तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना. ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में इतना थोड़ा सा देख के आना है, सो दैट आगे का पार्ट इजी रहेगा और भी.